फ्रेंड्स कैसे हैं? बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड स्कूल, विजयनगर, इंदौर। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर किया है तो फिर दोबारा ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑल्सो दिया, कमेंट भी कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो एक दिन आएगा कि जब घड़ी और लोगों की, दूसरों की होगी और समय आपका होगा और सब आपके पीछे लाइन लगाएंगे। तो आज मैं आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशंस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस का डेरिवेशंस करवाऊंगा। मेरे साथ मेरा प्यारा दोस्त है, इसको तो आप पहचान ही गए होंगे। आप पहचानते हैं इसको? देखिए इसके खूबसूरत बाल, और ये याद आ गया होगा आपको। अरे 2018 में पिक्चर आई थी ब्रॉली, और यह सुपर सैन ब्लू, द फ्यूजन ऑफ गोकू एंड वेजिटा, यानी गोजीटा है ये हमारा प्यारा। और आज गोजीटा ने कहा है मैं भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस का डेरिवेशन आपसे सीखूंगा। तो इसको हम बताएंगे, ये हमारा कामिया है, कामिया में। हाँ, ओके। तो आप बैठिए यहाँ, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ। तो ये बैठ गया है। यू नो वेरी वेल, when there is a change in velocity then acceleration is there, and acceleration is uniform if change in velocity is by equal amount in equal interval of time. It means there is increase or decrease in velocity by equal amount in equal interval of time. So when the body is moving with uniform acceleration, then we have to find the time period. Sometimes we have to find the distance traveled by the body or its final velocity if initial velocity is known, or we have to find the distance in a particular time, that is nth second. So for that we need equations of motion, and we have here 4 equations of motion for uniformly accelerated equations. How to derive uniform accelerated equations of motion by integration or calculation method, that already I had given in one video. वो मैं एक वीडियो पहले ही रिलीज कर चुका हूँ. Today I am going to give you graphical method for this equation. So मेरा heading देख लें आप. heading क्या है? My heading is derivation of equations of uniformly accelerated motion. Okay, derivations of equations of motion in accelerated motion, and I am using VT curve. मैं VT कर्व यूज करने वाला हूँ. VT मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व. तो यहाँ बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व और फिर यहाँ डेरिवेशन करेंगे. ठीक है बच्चों? सो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स we have to take velocity here, and this is my origin, and this is on x-axis time. Correct? Now body starts from t equal to 0. T equal to 0 means it's my टाइम x या टाइम ओरिजिन मान लेता हूँ मैं कि मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0. बट वेलोसिटी इज नॉट 0 एट दिस टाइम. सपोज बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव कर रही है एट पॉइंट A, and then it is like a straight line. Why? Because it is uniformly accelerated motion. It means velocity, change in velocity by the same amount in equal interval of time. So this is my curve, and I drop a perpendicular here. This is my time t. At time t, let velocity of the body is v. This is final velocity. तो मैं यहाँ से और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, एंड दिस इज माय स्लोप. दिस इज 90 डिग्री. इसको सी नाम दे देंगे. चलेगा बच्चों? सो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग इट स्लोप.
slope of VT curve I am finding here, and with the help of this I am going to find, तो पता है, first equation of motion. So there are 4 equation of motion, and I am now deriving first equation of motion, that is V is equal to U plus AT, and this is known as velocity time relation. अगर आपने साइंस ले लिया है, ले ही लिया है 11th में, तो अब आपको हमेशा इससे तो जूझना ही पड़ेगा, आपको बार बार इसके पीछे लगना पड़ेगा, ध्यान दें. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा कंसीडर लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा. कंसीडर a body of mass m moving with initial velocity u and after time t its final velocity becomes v. Now this is common for every equation of motion. ये common रहेगा, याद रखिए आप. So first equation of motion I have to prove v equal to u plus at. It means I have to find acceleration and the slope of this curve. Slope यानी क्या होता है ये भी बता दूं. A line makes an angle theta with the horizontal line or x-axis, that is known as slope. And slope means tan theta I am taking perpendicular upon base. अगर आप इसको देखें BC को, तो what is BC? देखो यहाँ से यहाँ तक V है और यहाँ से यहाँ तक U है. So BC is actually V minus U and time is t minus 0, that is t. Right? So in order to find acceleration, we know that acceleration equal to tan theta होता है. Slope of the curve is equal to acceleration, और acceleration कितना होगा? Perpendicular upon base. So which is perpendicular? BC, and base is AC. Sometimes the students, they are not knowing which is perpendicular and which is base. तो आज मैं आपको बता देता हूँ. 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है ऑलवेज, 90 डिग्री के अपोजिट, एंड द साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर. सो दिस इज परपेंडिकुलर, और बचा कौन? ये बेस हो गया. है ना. सो BC देखो, BC इज V माइनस यू. सो A इज इक्वल टू BC इज V माइनस यू एंड AC इज T. चलो भाई इधर आ जाओ. AT इक्वल टू V माइनस यू. So V is equal to U plus AT. क्या आ गया? हाँ भाई गोजिटा जी, कैसा लगा आपको? ये समझ में आ रहा है आपको? आया? मजा आया? ठीक. This is our first equation of motion. V is equal to U plus AT. Now we have to derive second equation of motion. So for second equation of motion, यहाँ second करता हूँ मैं. So second equation of motion is S equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब नाम बदल गया इसका, क्योंकि S यानी डिस्टेंस होता है एंड टाइम इज हियर. इट मीन्स इट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन, या अगर आपकी इच्छा हो कि इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो आप वो भी बोल सकते हो. सो पोजीशन बोलता हूँ, पोजीशन ज़्यादा अच्छा है. पोजीशन टाइम रिलेशन. सो कंसीडर इज सेम हियर. Now I think you know very well. The area under the curve gives the distance. किसी भी कर्व के नीचे के एरिया वो डिस्टेंस देता है. तो ये कर्व है हमारी, उसके नीचे का ये एरिया है. कौन सा एरिया? ये देखो, ध्यान से देखना है. इसका भी नाम दे देता हूँ. नाम नहीं दिया ना मैंने इसको. ABC और ये D दे दिया. एंड दिस इज व्हाट? क्या है प्यारे बच्चों?
You all are mathematics genius, you know very well. It is a trapezium. So हम अब एरिया निकालेंगे. We know that distance covered, COVER, covered equal to area under curve. तो डिस्टेंस ऐसे और एरिया किसका निकालना, ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, ओ ए बी डी ओ या ए बी डी ओ, ए बी डी ओ, राइट. नाउ क्या फार्मूला होता है भाई गोजिता, है क्या फार्मूला होता है बेटा ट्रेपेजियम के एरिया का. अरे यस, यू आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी जो पैरेलल साइड्स होती है उनको ऐड करो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो. हाफ इंटू b1 plus b2 into h. This is formula. Okay, तो वैल्यू पुट करते हैं. So 1/2 b1 यानी ये वाली साइड, कौन सी साइड हो गई, OA, प्लस पैरेलल साइड दूसरी क्या है, BD, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये OD. करेक्ट बच्चों. सो S इक्वल टू 1/2. नाउ OA, what is OA, U. What is BD, BD है V, एंड H क्या है, T. फार्मूला तो आया ही नहीं. क्या करें भाई, वी हैव टू राइट हियर द वैल्यू ऑफ V, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, V इज इक्वल टू U प्लस AT. तो मैं वो पुट कर देता हूँ. कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, चलेगा. चल हट जाओ. S इक्वल टू 1/2 U plus, now in place of V I am writing U plus AT into T. So 1/2 and U plus U is 2U plus AT into T. So S equal to 1/2 into 2U into T, T से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/2 AT into T, 2 2 2. So S equal to UT plus 1/2 AT square. This is my second equation of motion. फिर से देखिए, S equal to 1/2, U is U, and in place of V from first equation of motion U plus AT into T, यहाँ लिख देता हूँ मैं, from first equation of motion S equal to 1/2 U plus AT into T. Now U plus U is 2U, और अब मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट, 1/2 2U and T प्लस 1/2 AT into T. So 2 2 कैंसल आउट हो गया बच्चों. So UT plus 1/2 AT square. This is second equation of motion. एक्चुअली सेकंड से ही मैं फोर्थ भी निकाल लेता हूँ. कौन सी, फोर्थ इक्वेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन NH निकाल लेंगे, पर उसके लिए ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होगा. तो पहले अपन थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, फिर इसको फिर कर लेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो प्यारे बच्चों. थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS. ये किसका रिलेशन हुआ, टाइम तो है नहीं. इट मीन्स वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन है. वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. ओके, दिख रहा है ग्रीन कलर.
फुजीटा जी दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। सो अगेन द सेम थिंग, एंड एस हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको? एस। तो हम यहीं का यहीं ऐसे का ऐसे ही लेकर के चलने वाले हैं, सेम टू सेम चलेंगे। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ तक भी आ गया, यहाँ तक आ गया मैं, ओके। नाउ मुझे टी नहीं चाहिए, अब टाइम नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? टाइम। तो मैं टाइम की वैल्यू रखूंगा यहाँ। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ टाइम। और टाइम क्या है आपको पता है? देखें, ये ब्लू से लिखता हूँ, आपको थोड़ा ढंग से दिखेगा। एस इक्वल टू 1/2 u plus v. So I am using first equation, but I am writing the value of t. So first equation of motion क्या थी हमारी? Our equation v is equal to u plus at. So v minus u is equal to at. So v minus u upon a equal to t. ये वैल्यू मेरी आई। दिस वैल्यू आई एम पुटिंग हियर, v minus u अपॉन a, ठीक है। तो 2 एंड a यहाँ चला गया, 2as equal to v plus u into v minus u, and this is a square minus v square. So v square minus u square equal to 2as. कितना इजीली ले आया देखो मैं। The same, now putting the value of t here, v minus u upon t यहाँ से निकाला था, and you will get 2as equal to v square minus u square, है ना। One more thing, if you don't like trapezium, so you can use the area of triangle plus area of rectangle, तो भी यही आंसर आएगा आपका। क्या लेंगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं लेना, तो यू कैन टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है? ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। And when you write the values, you will get the same result here. सब कुछ सेम आएगा आपके पास। ये देखिए, एरिया दिस इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? 1/2, कैन बदल लेता हूँ, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये बेस और ये एल्टीट्यूड, यानी v माइनस यू इंटू टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, u इंटू टी, ओके। एंड फिर अगेन यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दे, तो आप, और v माइनस यू आपको पता ही है क्या होता है? 80 होता है। क्या होता है v माइनस यू? 80, एंड दिस इज t प्लस यू टी, सो यू विल गेट ut plus half 80 square, and this is second equation of motion. So you can find second equation of motion by using area of triangle and area of rectangle का sum करके। Okay, now the last one, the last is fourth one, and that is distance covered in या traveled by object in nth second. Distance traveled by object in nth second. Okay बच्चों, so body is moving with velocity u, ये सब ठीक है, but now I have to take 2 times, 2 टाइम हमको अलग अलग लेने पड़ेंगे, और वो 2 टाइम्स कौन कौन से होंगे? The first time is n-1 and the second time is n. So suppose this is the time n-1, and at n-1 upon velocity is also vn-1, and this is the time, ये वाला पूरा टाइम ले लो या आगे वाला ले लो, v तो लेने की जरूरत ही नहीं है। Now here
the time is n, and suppose velocity is vn. So this is my b, and ये a था, इसको a ले लेता हूँ, and this is my slope c. Correct बच्चों? So consider a body of mass m moving with initial velocity u, and after time t its final velocity becomes v. तो इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, विथ इनिशियल वेलोसिटी है ना. तो टाइम लिख देते हैं एट टाइम n माइनस वन, velocity is vn minus 1, and at time n final velocity is vn. करेक्ट बच्चों? अब खेल तो वही खेलना है आपको. डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर सेकेंड, यानी nth सेकेंड. सो यू हैव टू फाइंड s, और s निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू दिस, एंड मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहा हूँ, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. आ रहा है क्या इसमें कि नहीं आ रहा? आ रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सेम टू सेम, ये वाला है ना, ए बी सी डी ई, and area you know very well. What's the formula for area? 1 by 2 b1 plus b2 into h. ओके गोलजीता जी, आ रहा है? आ रहा है गोलजीता को. तो इसी के आगे लिख देता हूँ 1 by 2 b1, b1 यानी ये ए प्लस दिस इज बी डी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ई डी. देखिए नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है ना. तो मैं थोड़ा नीचे बैठ के देख रहा हूँ, चेयर ले लेता हूँ, नीचे का एरिया आ रहा है, दिख रहा है ना आपको. सो एस इक्वल टू, पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, एस इक्वल टू 1 by 2 ए ई, वेयर इज ए ई, ये है वी एन माइनस वन, प्लस बी डी वी एन इंटू ई डी. ई डी मीन्स this minus this, n minus n minus 1. यहाँ टाइम n है बच्चों. So 1 by 2, and now I am writing vn minus 1 की वैल्यू. So vn minus 1 is v equal to u plus at. तो n t की जगह n minus 1 रख देंगे. So u plus a into n minus 1 plus vn is u plus an, एंड इसको ओपन करो, n माइनस एन प्लस वन, एन एन भगवान को प्यारा हो गया. ओके नाउ यहाँ जगह बना लेता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी. ओके सो एस इक्वल टू 1 by 2 इनसाइड u एंड u, देखो दिस इज 2u प्लस, इसको ओपन कर दें या ए कॉमन निकाल लेते दोनों, तो बचेगा n माइनस वन प्लस एन, और बाहर तो 1 है ही. सो s इक्वल टू 1 अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस a, and this is twice n minus 1. So s is equal to 2u by 2 plus 1 by 2 2n minus 1 2 to 2. So s is equal to u plus 1 by 2 a into 2n minus 1. वाह, आया आपको? एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये देखिए
we know that distance covered equal to area under curve. So S equal to area of trapezium ABCDE, and area of trapezium is 1 by 2 B1 plus B2 into H, यानी 1 by 2 AE plus ED into ED. That is from the graph. So S equal to 1 by 2, and AE means velocity Vn minus 1 plus BD means Vn, and ED means n minus 1. Okay, so 1 by 2 Vn minus 1, we know that v equal to u plus at, so u plus an minus 1 plus Vn की जगह u plus an, and if we solve this is 1 now. So look here, now here we have s equal to, यहाँ से आया देखो 1 by 2 u and u 2u plus a is common, so n minus 1 plus n, and outside 1 only. So 1 by 2 2u plus a into this is 2n minus 1, and so we open the bracket, 1 by 2 2u plus 1 by 2 into this 2 cancel out, so s is equal to u plus 1 by 2 a into 2n minus 1. नहीं दिक्कत आ रही है? ओके ओके, कोई बात नहीं, समझ लो। देखो तो थोड़ी दिक्कत आ रही है गोजीटा को, तो समझाना पड़ेगा। देखो गोजीटा, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा अच्छा, इसलिए आपको नहीं समझ में आया, मैंने यार ट्रेपेजियम नहीं लिखा है। ओके सॉरी यार, ट्रेपेजियम स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो आप ठीक कर लेना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है? ट्रेपेजियम हमारा A, B, C, D. Now it is sum of parallel sides into height, perpendicular distance. So 1 by 2 AE plus BD, ये वैल्यू तो आपको आई गई थी। Now Vn minus 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u plus a into n minus 1 प्लस इसकी u plus an। टाइम इज, टाइम क्या है बच्चों? टाइम n है अब, है ना। नाउ ये देखिए, इसको ओपन कर दिया, एंड देन मूव वेयर, then we are moving from here to here, correct? So look here, s equal to 1 by 2 u और u 2u plus a common, तो n minus 1 plus n, और ये बाहर क्या बचा था? 1। now s equal to 1 by 2 2u plus a and n and 2n minus 1, now open the bracket and you will get s equal to u plus a by 2 2n minus 1। okay, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आई होंगी, गोजीटा को भी समझ में आई है। तो प्लीज़ घर पर रहिए, माता पिता से प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, दादा दादी नाना नानी सभी से प्यार से रहिए, दोस्तों से भी मिलिए, खेलिए भी, अच्छा खाइए। सो हैव ए गुड डे, और हमारे प्यारे गोजीटा को भी आप अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।